Very good morning, children. Welcome back to part 1 video of chapter 2, acid, bases and salts of class 10 science. So in the last class we learned about chapter 1, and in that also we did 2 videos, part 1 and part 2. So for this chapter, acid, bases and salts, this is a part 1 video. So let's discuss what is acid, what is base and what is salt. So what kind of chemical substances are called acids, and what kind of chemical substances are called bases, and what type of chemicals are called salts. So most of the chemicals come under these 3 categories only. All the chemicals can come under these categories. One, either it is a acid, or it is a base, or it is a salt, or a double salt, whatever it goes in that higher level. But basically it is acid, base or salt. It could be a strong acid, strong base, weak acid, weak base, and it could be an acidic salt, and it could be a basic salt, and it could be a neutral salt, right? So लेकिन basically हम यहाँ पे सीख रहे हैं acid, base और salt. तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, phosphoric acid H3PO4, phosphoric acid. And these are actually mineral acids, actually strong acids. और कुछ ऐसे एसिड भी है जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स, जो हमारी फूड आइटम्स, फूड पार्टिकल्स के अंदर पाया जाता है. फॉर एग्जांपल द सिट्रस फ्रूट्स होता है, ऑरेंज, लाइम, और इन सब में एक सिट्रिक एसिड है. और टैमरिंड, इमली जो है उसके अंदर टार्टारिक एसिड है. एंड एप्पल के अंदर मैलेइक एसिड है. एंड टोमेटो, it has oxalic acid, or even we use vinegar, and that is acetic acid, CH3COOH. So there are different types of acids, and there are some acids which are very weak. Organic acids are weak, it is edible, है ना. लेकिन नॉर्मली एसिड्स क्या होता है, हाईली कोरोसिव होती है, और ये आपके बॉडी में, इवन इसके जो कंटेनर है, इसके कंटेनर में एक टेस्ट ट्यूब का निशान है, और उसमें से कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं, और फिर एक हाथ का पिक्चर होगा, और हाथ के पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो हाथ में क्या हो रहा है, जहां पे ड्रॉप गिर रहा है वहां पे हाथ पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब एक छेद हो गया, वहां पे होल हो गया. So it is very corrosive in nature, both acid and base, but acid is much corrosive. ठीक है. और acid का खूबी है कि it is a little bit sour in taste, corrosive in nature, sour in taste, and one of the main chemical property, the chemical difference that we can say is in their aqueous solution, acid जो है it makes H plus ions, and when we talk about base, NaOH, sodium hydroxide is a base. CaOH twice, calcium hydroxide is a base. KOH, potassium hydroxide is a base. और जो बेस वाटर में डिसॉल्व होता है, H2O के अंदर डिसॉल्व होता है, उनको बोलते हैं अल्कली. और जो कोई और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है वो भी बेस है, बट वो अल्कली नहीं है. Alkalis are those bases which get dissolved in water, which can make their aqueous solution in water.
और इनमें देखो कि OH प्लस OH माइनस आयंस को क्रिएट करते हैं एंड इट क्रिएट्स H प्लस आयंस, क्योंकि इसमें एक H का ग्रुप यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे एक OH का ग्रुप जरूर आ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस. सो दीज ऑल आर एक्चुअली, जिसकी भी वैलेंसी 2 आएगा उसके आगे ट्वाइस आएगी, है ना, और जिसकी वैलेंसी 1 है, जिस मेटल का वैलेंसी 1 है उसके आगे OH में 1 आएगा. ओके, so if I make it more clear, for example, so ये जो पिक्चर ये बताता है कि कितना ये खतरनाक है, कितना corrosive है. So acids are corrosive, bases are corrosive. Acids give H plus ions in their aqueous solution and bases give OH minus ions in their aqueous solution. Okay, so H plus ions and here OH minus ions, and they are sour in taste and they are bitter in taste. Bitter, ये थोड़ा कट्टा है, ये थोड़ा कड़वा है ना, दोनों में अंदर है. सोर इज डिफरेंट एंड बिटर इज डिफरेंट. करेला का जो टेस्ट है वो दैट इज अ बिटर टेस्ट, बट द सोर इज थोड़ा कट्टा टेस्ट है, कटाई इमली के जैसा. सो एंड द थर्ड वन इज या नींबू के जैसा. द थर्ड वन व्हाट डिड आई से इज alkali and base का main difference, and they dissolve in water or they in their aqueous solution they produce H plus ions and NaOH या sodium hydroxide or potassium hydroxide, whatever the bases, they produce OH minus ions and they are sour in taste and they are bitter in taste, and both of them have a common property which is they are corrosive in nature. They are corrosive and harmful to human skin and human flesh especially. It can consume, it can corrode human flesh. Okay, so let me explain this H plus ions and OH minus ions in detail. So let me take only now this two, let me take HCl only. HCl, जब वो वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो इट बिकम्स H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन. हालांकि पहले तो ये क्या बनता है कि ये जो H प्लस और OH माइनस बनता है. ओके, सॉरी, H2O जो है, H2O के साथ भी ये H जुड़ते हैं तो H3O प्लस बनता है ना, because hydrogen actually takes shares one electron from chlorine. Chlorine का अगर आप एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इट विल बी 287, है ना. ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप क्लास 9th में सीखा है ऑलरेडी, है ना. इनके वैलेंसी क्यों बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. So anyway, I'm not going in detail with that. We can go a little bit detail of electronic configuration are all in 3rd chapter, है ना. So when we talk about metals and non-metals, so we'll be more dealing with this, valencies and all. तो उसमें even electron dot structure भी बनाने के लिए है. chapter 4 में भी electron dot structure वगैरह 2 type of compounds के बारे में है, ionic compounds and कोवलेंट कंपाउंड्स. तो ये सब चीजें डिटेल में थोड़ा वहां पे देखेंगे. तो अभी थोड़ा प्रिसाइज में देख लेते हैं कि ये जो H है, अगर ये हाइट अपना इलेक्ट्रॉन को इनको डोनेट कर लेते हैं तो इट इज H प्लस, और क्लोरीन को एक चाहिए तो ये Cl माइनस हो जाती है ना. सो दैट इज H प्लस आयन देन Cl माइनस आयन, लेकिन इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, सो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लेकिन ये जब अपनी H प्लस आयन को वाटर को देते हैं तो इट बिकम्स ए हाइड्रोनियम आयन. सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम. सो हाइड्रोनियम आयन, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस लिखते हैं हम इसको, H2O के साथ में एक H और आगे, और Cl माइनस आयन. और इस तरह की एक
एक स्प्लिटिंग यहाँ पे देखते हैं। हालांकि ये H प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, लेकिन ये H प्लस आयन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो वाटर के साथ मिलके एक हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। लेकिन OH माइनस आयन स्टेबल है, इसीलिए हम इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं कि NaOH प्लस H2O, या H2O के अंदर जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो इट विल बिकम Na plus and OH minus. So Na plus and OH minus. So in the aqueous solution, it is characterized by OH minus ions. Alkalis, yeah, bases are characterized by OH minus ions, and acids are characterized by hydronium H3O plus ions, और शॉर्ट फॉर्म में बोलेगा तो H प्लस आयंस है ना, लेकिन वो H प्लस आयन स्टेबल नहीं है, इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में वहां पे बना रहता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है जब वो अपनी एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में डिसएसोसिएट होता है ना, दे डिसएसोसिएट इनटू आयनिक फॉर्म्स आयंस लाइक हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन। सो जब ये अपनी एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो ये HCl और वाटर की स्टेट में नहीं है, आयंस की स्टेट में है। और इसीलिए कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हो, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन, इनकी एक कॉमन एक और कैरेक्टर है, जैसे एक कोरोसिव तो है लेकिन कॉमन एक और कैरेक्टर है कि दे आर गुड कंडक्टर्स, क्योंकि उनके अंदर अभी आयंस है ना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेदर इट्स अ बेस और एन एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द आयंस प्रेजेंट इन देम, है ना। और इसमें भी Na प्लस और OH माइनस आयंस है, लेकिन बात यह है कि उसके अंदर अगर 100 या 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स है NaOH का, या NaOH का सॉल्यूशन में, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन में अगर जो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया उसके अंदर मान लो 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन तो 1 करोड़ के पूरा 1 करोड़ क्या नहीं होता, डिसोसिएट इनटू Na प्लस और OH माइनस आयंस नहीं होते, है ना, उसमें कम ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा डिसोसिएशन होती है आयनिक फॉर्म में या आयंस के रूप में वो स्प्लिट होता है, तो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्केली होती है। और इसी तरह यहां पर जितना ज्यादा वो हाइड्रोनियम और क्लोरीन आयंस में स्प्लिट होती है या डिसएसोसिएट होता है, और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। और जितना कम वो, अगर वो पार्शियली आयनाइज हुआ तो इसका मतलब है कि दैट इज ए वीक एसिड, और वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है देन दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, इन द सेम वे जो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, और जो वीकली आयनाइज हो रहा है, पार्शियली आयनाइज हो रहा है, देन दैट इज ए वीक बेस। ओके, और जो बेस वाटर में सॉल्युबल है that is also called alkali. So alkalis are bases which are soluble in water. Okay, so that's introduction about this bases and acids. The same thing even you can do it for calcium hydroxide, and you can do it for sulfuric acid H2SO4. H2SO4 you give H3O plus SO4 2 minus, लेकिन H3O 2 आना चाहिए, है ना। तो यहां पर एक H3O 2H2O के साथ ये जुड़ेगा, तो एक H2O में एक H जाएगा, फिर एक और H2O में एक H जाएगा, इस तरह इसमें पूरा H3O। सो इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो लाइक H2SO4, और इसमें 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, मतलब 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे, और सल्फेट का आयन का वैलेंसी 2 माइनस है, तो यहाँ पर 2 प्लस आना चाहिए, तो 2 प्लस आ गया ना, एक H3O प्लस का एक मॉलिक्यूल, फिर एक H3O प्लस का एक और मॉलिक्यूल, तो 2 प्लस आ गया। सो इस तरह 2 हाइड्रोनियम आयंस बनता है एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन उसमें डबल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, 2H2O। So in the same way, even calcium hydroxide you can split, or any alkali you can, any base you can split into ionic form, लेकिन उनका disassociation का जो level है, whether it is completely getting dissolved या disassociated into ions or partially getting disassociated into ions, depends on whether it is a strong acid or a weak acid, a strong base or a weak base.
ओके, सो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करते हैं तो फिर हमें ये भी बात करना पड़ेगा थर्ड वन, एसिड बेस एंड सोल्ट। तो सोल्ट का भी बात करना पड़ेगा। तो सोल्ट के लिए भी वैसे तो ये डिटेल में हम बाद में इस चैप्टर में लास्ट फ्यू टॉपिक्स में ज्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शुरू में इसके बारे में बता देता हूँ। हालांकि वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द लास्ट चैप्टर्स ए रिएक्शन कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है एंड बिकम्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। और ये सब अपनी लिक्विड स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है ना। और ये सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड और फिर ये मिल के एक्वस स्टेट में वापस हो जाती है, सॉल्ट उसमें मिल जाएगा। ओके, सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जांपल द फेमस formula we have NaOH, sodium hydroxide and HCl, hydrochloric acid, will give you NaCl plus H2O. So this is a salt. NaCl is a salt. NaCl do not have any character of an acid and do not have any character of a base. और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए यहां पर जो सॉल्ट बनेगी एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा बिल्कुल। लेकिन अगर सपोज वी हैव ए स्ट्रॉन्ग एसिड reacting with a weak base, then what will happen? इसमें कौन ज्यादा होशियार है भाई, एसिड ज्यादा होशियार है या बेस ज्यादा होशियार है? ऑफ कोर्स एसिड। सो जो सॉल्ट बनेगी एंड दैट सॉल्ट इज लिटिल बिट एसिडिक इन कैरेक्टर। तो इसका मतलब सॉल्ट बिल्कुल न्यूट्रल भी हो सकता है ना, और इवन दो देयर इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द सॉल्ट कैन बी एसिडिक सॉल्ट एंड द सॉल्ट कैन बी basic. How? If there is a strong base and a weak acid reacting and getting a salt, then that salt will be a basic salt, basic in nature. So salt could be basic in nature, salt could be acidic in nature. और इसकी examples आगे की reactions जब हम deal करेंगे तो हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी in brief, what I want to share is there is something called acid, strong acid, weak acid. There is something called base, strong base, weak base, and there is something called salt, and the salt can be a very neutral salt, it could be an acidic salt, and it could be a basic salt. So that is the overall idea about what is acid and what is a base and what are acids and what are salts and what are bases. So now let's go to the next topic, indicators. और यहां पर जो इंडिकेटर की बात मैं कर रहा हूं, ये गाड़ी का इंडिकेटर की बात नहीं है, more clearly acid base indicator. Once again I repeat, it is more clearly acid base indicator. मतलब एसिड है या बेस है, ये साफ साफ बताने वाला इंडिकेटर। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि गाड़ी में जो है इंडिकेटर होती है ना, एक वेल एजुकेटेड पर्सन है तो वो जरूर, अगर वो राइट मोड़ेंगे या लेफ्ट मोड़ेंगे, व्हेनेवर ही टेक्स अ टर्न ही विल श्योरली स्विच ऑन द इंडिकेटर, है ना। तो इंडिकेटर अगर राइट के लगाएंगे तो वो क्या कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, कुछ सूचना दे रहे हैं, है ना। क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर राइट इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब है कि द व्हीकल इज अबाउट टू टर्न टू द राइट, सो इट इज इंडिकेटिंग समथिंग। इन द सेम वे यहां पर एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब है ये एसिड है या बेस है, हमें इंडिकेट कर रहा है ना, हमें बता रहा है कि इज इट एसिड या इज इट ए बेस, द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक या गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक। उसको टेस्ट करने के लिए हमें मदद करने वाला कुछ सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे या कुछ केमिकल्स को हम बोलेंगे इंडिकेटर्स। तो यहां पर 3 तरीके की इंडिकेटर्स के बारे में हम देखेंगे। पहला जो इंडिकेटर है वो है एकदम नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी
आपके दिख रहे, ओके, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर. So whatever I write on the board, I think it is visible. Okay, olfactory indicators. और what are natural indicator? इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ. लिटमस पेपर आता है, लिटमस का पाउडर, लिटमस का सॉल्यूशन आता है, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर. ये इंडिकेट करता है कि एसिड है या बेस. कैसे इंडिकेट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. अगर लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा एसिड डालेंगे या एसिड में आप लिटमस का सॉल्यूशन डालेंगे, देन इट विल बिकम रेड इन कलर इन एसिड. सो पहले एसिड फिर बेस, ठीक है. तो एसिड में ये रेड कलर के हो जाते हैं और बेस में ये ब्लू कलर की हो जाती है. सो दैट इज अ इंडिकेशन दैट द लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन गिव्स अस. फॉर एन एसिड, लिटमस अपना कलर को चेंज कर देता है, रेड बन जाता है. और अगर ऑलरेडी रेड है तो फिर रेड ही रहता है. और अगर अल्कली या बेस में डालेंगे तो वो ब्लू चेंज हो जाता है. फिर उसको वापस अगर आप एसिड में डालेंगे तो वापस ये रेड में कन्वर्ट हो गया. अगर आप कोई न्यूट्रल चीज में, जैसे कोई सॉल्ट है ना, और सॉल्ट थोड़ा एसिडिक और बेसिक भी हो सकता है, लेकिन अगर न्यूट्रल चीज के अंदर एकदम सोडियम क्लोराइड की तरह एकदम न्यूट्रल सॉल्ट में या उसका सॉल्यूशन में डालेंगे तो अगर रेड है तो रेड ही रहेगा, और ब्लू लिटमस को डालेगा तो ब्लू ही रहेगा. वो रेड लिटमस को डालेगा तो रेड ही रहेगा. इट विल नॉट शो एनी चेंज इन द कलर बिकॉज दैट इज नीदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन नॉर बेसिक. ठीक है. और भी है नेचुरल में देखो फ्लावर, कुछ हम लोग अब हमारे बचपन में ये इंडिकेटर के रूप में करते थे, है ना. कुछ herbaceous plant का फ्लावर आता है, और इवन हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम, इस तरह की प्लांट्स का फ्लावर आता है. आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, है ना. इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इनके नेम्स क्लियरली दे रखा है ना. हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम. तो ये सब कुछ फ्लावर के नेम्स है. और ये फ्लावर के जो पेटल्स है ना, उसके जो कलरफुल पार्ट है, उस कलरफुल पार्ट को आप एक पेपर में अच्छे से रगड़ेंगे तो देन दैट पेपर कुड इंडिकेट यू, या इट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर. उसमें आप एसिड गिराओ बिल्कुल रेड कलर की हो जाएगी, बेस गिराओ थोड़ा सा वो पिंक कलर का, सॉरी एसिड गिराने से वो थोड़ा ब्लू कलर के हो जाएगा. ओके, एसिड गिराने से ब्लू कलर की हो जाएगी और बेस गिराने से वो पिंक कलर का हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली फॉर दैट फ्लावर. एंड व्हाट अबाउट समथिंग एल्स कॉल्ड रेड कैबेज. ये रेड कैबेज भी एक इंडिकेटर है. ये तो मार्केट में अवेलेबल है एक्चुअली, रेड कैबेज का लीफ, और ये रेड कलर की होती है. अगर ये एसिड में डालेंगे तो रेड ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा अल्कलाइन, है ना, अल्कलाइन सॉल्यूशन जो घर पे अवेलेबल है वो है सॉफ्ट सॉल्यूशन. तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में उसको डालेंगे तो वो थोड़ा सा ग्रीन इन कलर में चेंज हो जाएगी. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर द 3 नेचुरल इंडिकेटर्स अवेलेबल. लेकिन ये जो लिटमस है क्या है ना, नॉर्मली अपन लिटमस का यूज करते हैं, है ना. इवन लैब में भी लिटमस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं. तो ये लिटमस है क्या एक्चुअली, है ना. ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, है ना. लाइकेन से बना हुआ है. ये लाइकेन क्या है? फंगाई और बैक्टीरिया का एक सिम्बायोटिक सिस्टम है एक्चुअली. सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं सिम्बायोसिस के बारे में एक्सप्लेन करूं, सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिशियल रूप में वो साथ में रह रहे हैं. हो सकता है एक दूसरे को खाना फूड प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा उस अगले को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना. आपने सुना होगा हेर्मिट क्रैब के क्या है, शेल नहीं होता, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या है, कोई शेल वाला जानवर के अंदर घुस जाते हैं
तो उस ये जो हर्मिट क्रैब जो खाना ढूंढता है वो खाना उसके साथ शेयर कर लेते हैं, शेल वाला, शेल फिश के साथ। और वो जो शेल है जो है ये हर्मिट क्रैब को और दुश्मन से बचाते हैं, है ना, या कोई बड़ा अटैक से, है ना, हर्ट होने से बचा लेता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई शेल नहीं है। नॉर्मली क्रैब्स में शेल होता है लेकिन हर्मिट क्रैब से नहीं है। और इसी तरह फंगाई और आल्गाई, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने 9th क्लास में सीखा, फंगाई और आल्गाई, है ना। ये है क्या है फंगाई और आल्गाई? फंगाई का एग्जाम्पल बताऊं, मशरूम्स, है ना, मार्केट में भी अवेलेबल है। तो ये मशरूम्स क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी क्लोरोफाइल का पिगमेंट्स नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फिर वो क्या करेंगे कि जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है और उसका यूज करेंगे, और या कोई मरा हुआ प्लांट है ना, लकड़ी है, और उस लकड़ी में से न्यूट्रिशन को लेकर और मशरूम, है ना, बिल्कुल खड़ा हो जाता है और वो अपने उसमें से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन इन अ डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. So mushroom is a good example of fungi and another is algae. Algae actually एक तरह की बैक्टीरिया भी बोल सकता है, लेकिन algae is green organism जिस फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हालांकि वो प्लांट नहीं है, तो प्लांट्स और एनिमल्स आर डिफरेंट। तो प्लांट और एनिमल्स के अलावा है ना बहुत सारा आपने फैमिलीज क्लास 9th में सीखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखा था, है ना, पोरिफेरा, कोडाटा एंड लॉट ऑफ थिंग्स है ना। तो उसमें से दो चीजें हमने सीखे थे 9th क्लास में, वो है फंगाई और आल्गाई। और ये जो आल्गाई जो है ये खुद का खाना बना सकता है, लेकिन फंगाई जो है खुद का खाना नहीं बना सकता। इट हैज टू डिराइव इट्स फ्रूट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, अदरवाइज इट हैज टू गेट इट फ्रूट फ्रॉम समबडी एल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आल्गाई क्या करते हैं, क्या आल्गाई थोड़ा ग्रीन है। सो इवन अभी बारिश का मौसम में आप देख सकते हैं कि आपके अगर गमला घर पे है तो गमले में ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ कोट आ गया, है ना, मिट्टी में ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं, या जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है, एक्चुअली algae है ना। दे कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रोड्यूस इवन ऑक्सीजन। सो algae अपना फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना को बनाते हैं, लेकिन फंगाई जो है वो अपना खुद का खाना नहीं बनाते। लेकिन फंगाई जो है, फिर फंगाई को खाना कहाँ से मिलता है, ये algae से मिलते हैं। और algae को प्रोटेक्शन फंगाई देते हैं और उसको एडवर्स कंडीशन में रहने के लिए और हेल्प भी फंगाई देते हैं। तो फंगाई थोड़ा कभी ग्रीन कलर का नहीं होता है। सो फंगाई और algae मिलके जो कभी पेड़ में आपने देखो या पत्थर के ऊपर देखा होगा, है ना, फंगाई और algae मिलके एक मॉस नहीं है, एक्चुअली मॉस की तरह एक डिफरेंट प्लांट जैसा एक ऑर्गेनिज्म, है ना, प्लांट जैसा एक ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज एक्चुअली लाइकेंस। और ये लाइकेंस में से डिराइव्ड एक पाउडर या एसेंस है ये लिटमस, लाइकेंस में से डिराइव्ड एसेंस है लिटमस। सो दिस इज नेचुरली ओकरिंग। और ये जो हाइड्रोजिया, पेटूनिया और जेरेनियम जो फ्लावर्स है, और वो भी नेचुरली ओकरिंग है। और रेड कैबेज दैट इज नेचुरली ओकरिंग। तो ये सब अपनी कलर को चेंज करते हैं। रेड कैबेज रेड कलर होता है एसिड में, लेकिन थोड़ा हल्का ग्रीन कलर हो जाती है और अल्कली सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। एंड अनदर वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मींस मैन्युफैक्चर करते हैं। एक है फिनोल्फथलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। और आप लैब में जो है ये मेनली सिंथेटिक में फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथलीन का सॉल्यूशन नहीं तो मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन, है ना। हायर क्लासेस में जैसे 11th क्लास और 12th क्लास में जो भी एक्सपेरिमेंट है वो या मिथाइल ऑरेंज या फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन से ही करते हैं। सो ये इंडिकेट करते हैं कि अभी ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे इंडिकेट करते हैं, फिनोल्फथलीन जो है एसिड में तो कलरलेस होती है ना। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट एवर आई एम राइटिंग फॉर एसिड एंड द सेकंड थिंग आई एम राइटिंग इट फॉर बेस। और पिंक कलर होता है
light pink in color, phenolphthalein in alkali, and methyl orange जो है it is red in color in acid and yellow in color in alkali. So these are the color I think okay, you can't see over here, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा. तो सिंथेटिक को इसको मिटा के लिख रहा हूं. सो सिंथेटिक, सो व्हाट आर तो हमने कर दिया. अब सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं वो है इंडिकेटर्स. और इंडिकेटर्स में और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में, फर्स्ट तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हमने देखा था. अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में देख रहे हैं. और सिंथेटिक इंडिकेटर में हमने देखा फिनोल्फथालीन और दूसरा है मीथाइल ऑरेंज. सो ये दोनों सॉल्यूशंस है, फिनोल्फथालीन का सॉल्यूशन और मीथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन. और ये कलरलेस होता है एसिड के लिए. एसिडिक मीडियम में हमेशा ये कलरलेस होता है. और ये थोड़ा सा पिंक कलर में होता है अगर ये अल्कलाइन मीडियम है. और मीथाइल ऑरेंज जो है ये जो है अल्कलाइन में तो येलो कलर की होती है और अदरवाइज एसिड में रेड कलर का होता है. रेड कलर का तो इवन लिटमस सॉल्यूशन भी एसिड में तो रेड कलर का ही होता है, बट दैट इज एक्चुअली द नेचुरल वन. ये सिंथेटिक वन है. और द लास्ट वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? है ना, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या होता है? योर नोज, द स्मेल, है ना, द स्मेलिंग ऑर्गन. तो आप कोई भी फूड आइटम्स का ना घर पे जब पराठा बनता है या दाल बनता है, कोई अलग सब्जी बनता है, तो उसका खुशबू आता है, उसका स्मेल आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये वाला सब्जी बन रहा है ना. बिकॉज डिफरेंट वेजिटेबल करी हैज ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, है ना. और इवन डिफरेंट वेजिटेबल्स हैज ए डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. फॉर एग्जांपल ओनियन का एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है ना. और but it has a different pungent characteristic smell due to some chemicals like sulfur and all. और olfactory indicator का मतलब ये होता है कि by smell you can understand that this is an acid or this is a base. So normally acid में क्या होता है कि it does not cause any change in the smell. The smell is still there, है ना. फॉर एग्जाम्पल ऑनियन है और वैनिला है, वैनिला का एसेंस इसका अपना खुद का एक स्मेल होता है. और क्लोव ऑयल है ना. और हिंदी में क्या पढ़ते हैं ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, क्लोव ऑयल. सो इन सब का अपना खुद का एक स्मेल होती है. और एसिड डालने से इसका स्मेल रिटेन होता है, मतलब स्मेल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. लेकिन अगर आल्कली में या बेस में उसको रखेंगे, व्हाट विल हैपन? ऑनियन अपना स्मेल खो देता है इन बेसिक सॉल्यूशन. और इन द सेम वे वैनिला, है ना, देयर इज नो स्मेल. और क्लोव ऑयल भी, द स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल गेट डिस्ट्रॉयड इन ए बेसिक मीडियम. बट इन द एसिडिक मीडियम द स्मेल ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो रिटेन होता है, मतलब वो वैसे के वैसा बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होती. ओके, सो बाय स्मेल, सो इफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज द स्मेल ऑफ दैट ऑनियन, वैनिला और वट, और इन तीनों से कोई भी एक, है ना, तीनों ही इंडिकेटर्स है. तो कोई भी एक को आप लेंगे, जैसे ऑनियन का आप उसको अच्छे से कूट के एक व्हाट इज दैट क्लॉथ में डाल दिया, देन दैट क्लॉथ कैन बी क्लॉथ हैज अ स्मेल ऑफ ऑनियन. लेकिन उसमें अगर आप एसिड डालने के बाद उसको धोएंगे तो फिर, या उसमें उसको थोड़ा पानी में रिंस करेंगे, देन इट विल नॉट हैव एनी स्मेल ऑफ ऑनियन. सॉरी, इट विल स्टिल हैव द स्मेल ऑफ ऑनियन. लेकिन अगर आप एल्कली में उसको धोएंगे देन इट विल नॉट हैव एनी स्मेल ऑफ ऑनियन, क्योंकि एल्कली में वो अपना स्मेल को खो देता है, लेकिन एसिड में वो अपने स्मेल को नहीं खोता है.
ठीक है. So in acidic medium they retain their smells, but in a basic medium they lose their smell. So this is all about the indicators, how they indicate that this is a base and this is an acid. Even for acidic salt or basic salt the same thing could be applied. और इसके बारे में हम थोड़ा और इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे. तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर करके एक टॉपिक है बाद में, और उसमें हम थोड़ा अलग से देखेंगे. यूनिवर्सल इंडिकेटर करके है ना, आजकल लिटमस पेपर की तरह पेपर आता है, और उस पेपर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर आती है. तो वो ये भी बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है ना. और उसमें पीएच स्केल करके एक स्केल भी है जो ये बताता है कि जिसकी वैल्यू, जिस भी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है, लेकिन 7 से कम जैसे 6, 5, 3, 2, 1 ऐसा वैल्यू है, तो जितना छोटा वैल्यू है उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता है. और जितना ज़्यादा, जैसे 7 के बाद 8 है तो फिर थोड़ा अल्कलाइन हो गया, 9 है तो और ज़्यादा अल्कलाइन हो गया, 10 है तो और ज़्यादा अल्कलाइन हो गया, और 14 तक उसका पावर मतलब पीएच स्केल जाता है 1 से लेकर 14 तक. और 7 जो है दैट इज अ न्यूट्रल थिंग, है ना. वाटर H2O इज न्यूट्रल. सो वो नेदर एसिडिक नॉर बेसिक होता है, और उससे नीचे ज्यादा एसिडिक होते जाता है और उसके ऊपर भी ज्यादा बेसिक होते जाता है. लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात है, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बाद में हम देखेंगे. उसमें कुछ बातें और सीखने की है, जैसे पीएच स्केल सीखने का है ना. सो दोज थिंग्स विल बी लर्निंग लेटर. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक we'll be learning in part 2 video, and that topic will be about reactions, chemical reactions involving acid, and then chemical reaction involving bases. So there are 5 types of chemical reaction in each of this category. I am going to teach you in the next video.